ہاں جی بتائیں، آپ کون سوال کرتے ہیں؟ جی جناب، ٹرو ایم ڈی، السلام علیکم شاہد بھائی، کیا حال ہے؟ الحمدللہ جناب۔ اچھا شاہد بھائی، مجھے ایک بندے سے آپ کو ملوانا ہے۔ ہاں، یہ نیچے سیم عمران بھائی نیچے ٹائپ کرے ہیں، انہوں نے آپ کی بروڈ پہ اسلام قبول کیا تھا، وہ کافی دفعہ آپ کے پاس آئے ہیں لیکن آپ ان کو رپلائی نہیں کر رہے۔ یار مجھے نہیں پتا، مجھے وہی نا، ان کی آئی ڈی بھی پرائیویٹ ہے، میں ابھی آپ سے ملواتا ہاں ہوں۔ بلائیں عمران جی بھائی سائم نیچے، پلیز ان صاحب کو کو، ماشاءاللہ وہ سیم تو کال انعام ڈالو یار، یافتہ مجھے آدمی ہیں۔ یہ دوسرا بندہ ہے جس نے جی مجھے ایک کلیم منٹ کی ہے، یہ شاہد بھائی، دوسرا ایک بندہ ہے منٹ جس نے عمران مجھے بھائی، کلیم کی۔ نیچے کال ڈالیں یا ٹائپ کریں، آپ کو شاہد بھائی کال ایڈ کرتے ڈالیں ہیں، گے، جب فری ہوں گے تو تب کال آپ آ ڈالیں جائیے گا گے تو پھر۔ پھر مجھے وہ نظر آئیں گے، اس طرح سے نہیں جی ملنا جی میں آ بول رہا سکتے ہیں۔ ہوں، میں بول رہا ہوں ان کی آئی ڈی پرائیویٹ ہے۔ عمران بھائی آپ کو وائس آ رہی ہے؟ وہ کافی سیم، دنوں سے یار آپ سے بات جی، کرنا چاہ رہے تھے لیکن آپ کی بات نہیں ہو رہی۔ ابھی میں نے آپ کو دیکھا تو میں نے ان کو پھر ہاں، میسج کیا کہ ادھر آئیں آپ۔ نہیں میں آئی ریئلی ایکسٹریملی سوری یار، آپ جو ہے نا، میں میسیجز وغیرہ نہیں دیکھتا، میں نے ان کو بولا بھی تھا میں آپ کو اپنا نمبر سینڈ کرتا ہوں، یو کین ٹاک ٹو می پرائیویٹ اف یو وانٹ۔ ٹائم اگر آپ موجود ہیں تو پلیز کال ڈالیں، مجھے آپ کی کال ابھی بھی نظر نہیں آ رہی۔ سیم بھائی آپ ہیں نیچے؟ پلیز میسج ٹائپ کر دیں نیچے۔ یہ سیم آئی تھنک یہ وہی سیم بندہ ہے۔ عمران۔ جی عمران، مجھے ڈاکٹر صاحب جب اس نے کلمہ پڑھا تھا نا تو میری زندگی کا جو سب سے حسین منظر تھا نا وہ اس بندے کی وجہ سے تھا۔ ہاں نہیں اور بلائیں، انہیں بلائیں، ماشاءاللہ۔ سائم صاحب آ جائیں آپ۔ وہ میرے ڈاکٹر خیال صاحب سے پتہ ہے وہ اس ٹائم جاب پہ ہیں، صرف میں اس ٹائم ملوانا چاہ رہا ہوں، ان کی آئی ڈی جو ہے نا پہلے والی وہ بند ہو گئی تھی، کسی ابھی میں مرزائی نیو نے آئی ڈی سے ان کو کرواتی ملوا رہا ہونی ہوں۔ ہے۔ اچھا اگر بس وہ آپ سے ایسے اسی لیے وہ آئی ڈی جو ہے نا اپنی پرائیویٹ رکھتے ہیں ابھی۔ نہیں، وہ انہوں نے مجھے بولا بھی تھا کہ مرزائیوں نے ان کی آئی ڈی جو ہے وہ بلاک کروائی تھی، رپورٹیں مار کے یہ حال کرتے ہیں، تم ڈرامے باز ہو، دھوکہ دیتے ہو۔ نانی جی اتنے آگے دسو نا ذرا کہڑا سی دھوکہ دینے ہیں، اسی وہ تے چلو تمہیں وہ والا اس نو دفعہ کرو فی الحال، عمران بھائی وہ نال والا اسی کانٹیکٹ کرنا ہے اس ٹائم۔ پلیز۔ دانیل ویلکم ہو گیا۔ عمران بھائی اگر آپ نیچے سن رہے ہیں تو پلیز نیچے میسج ٹائپ کریں۔ یہ آپ نے نہیں، مجھے ملک بی سی این نے بھی جو ہے وہ بولا تھا کہ وہ جو ہے وہ مجھ سے ناراض ہیں، یا ناراض نہیں ہو، کیونکہ مجھے اتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ اب تو مجھے آئی ڈی یاد نہیں رہتی، تو I'm extremely sorry about it۔ نہیں بس نہیں، میرا وہ سائم اسی ایمان لیے صاحب نا، کو بلائیں آپ، اگر وہ فارغ ہوں تو ضرور تشریف لائیں۔ میرا وہ ایمان یہی تازہ سمجھ کرنے رہے تھے والا کہ سیم آدمی ہے۔ وہ یہی سمجھ رہے کہ پتہ نہیں شاید بھائی مجھ سے ناراض ہے، میں نے کہا یار اور ایسی نہیں نہیں بات نہیں، کوئی بھی اللہ نہیں ہے، میں توبہ ملواتا ہوں استغفار، آپ سے۔ توبہ استغفار، ناراض نہیں ہوں میں ٹو بی آنیسٹ۔ ایک بندے نے میرا ایمان تازہ کیا اور میں اس سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ وہ شاید اس ٹائم جاب پہ تھے، مجھے انہوں نے بتایا کہ میں جاب پہ ہوں، میں وہاں پہ جا کے سنتا ہوں، آپ بتاؤ ان کو، تو اس لیے شاید رپلائی نہیں کر رہے۔ شاید بھائی ایسا ہے نا کہ آپ کو انہوں نے میسج کیے ہوں گے ٹک ٹاک پہ بھی، تو آپ ان سیم عمران کی نام کی جو آئی ڈی ہوگی نا اس کو رپلائی کر لیں، ٹھیک ہو گیا، میں دیکھوں تو گا، پھر آپ کا ان سے رابطہ ہو جائے گا۔ میں انشاءاللہ دیکھوں گا، میں ان کو اپنا پرسنل نمبر بھی سینڈ کروں گا۔ آئی تھنک السلام میں نے علیکم، کیا بھی تھا۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے سب بھائیوں کو؟ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم الحمدللہ۔ السلام۔ ڈاکٹر صاحب یہ نیچے بندہ لکھ رہا ہے کہ یہ آپ نے ڈمی بندہ بٹھایا ہوا ہے، تو میں اس کو جواب دینا چاہ رہا تھا کہ ان کا تو پورے کا پورا مرزا ہی ڈمی تھا، نہیں نہیں، مجھے ڈمی کہہ رہے۔ واللہ عالم اب کس کو اچھا کہہ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آج نا میں ایک روڈ پہ بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پہ ایک لڑکا آیا، بول رہا ہے کہ ہولی اسپرٹ صاحب جو ہے نا ایکس قادیانی ہے۔ میں نے کہا یار مجھے پروف دے دو، ہاں اس کو کہا ثبوت لے کے آ۔ وہ یہی میں نے بولا نا مجھے پروف چاہیے، ہاں جی، بولتے ہیں اچھا میں دیتا ہوں۔ کافی دیر آدھا گھنٹہ میں اس کی روڈ پہ نا نیچے بیٹھا رہا، میسج ٹائپ کرتا رہا، بعد میں بولتا ہے یار وہ ہم قادیانیوں کو بولتا ہے یہ زندیق ہے، مرتد ہے۔ میں نے کہا یار اس کو چھوڑو، مجھے وہ ثبوت دو جدھر ڈاکٹر ہولی صاحب ایکس قادیانی ہے۔
हाँ जी, बताओ उसका बताओ। वो उसका जवाब ही नहीं दिया फिर उसने। नहीं, वो मुझे एक्स कादियानी इसलिए बोलते हैं कि कादियानियों को हैरत होती है कि इनको हमारे बारे में, इस आदमी को इस कदर सही कितना बातें कहाँ से पता लगी। क्योंकि उनका बिल्कुल ऐसा कल्ट ही जो है। है ना, वो बड़ा क्लोज कल्ट है। वो अपने कल्ट वालों को दूसरों से मजहबी तरीक से मिलने जुलने से बड़ी सख्त मनाही है। तो वो सोचते हैं कि यार ये बंदा आ गया, ये तो सच्ची सच्ची बातें करता है। ये तो देखें, इस वक्त 900 से जायद कादियानियों ने मुझे बताकर इस्लाम कबूल किया पिछले 2 साल में, माशाल्लाह। और उनमें से काफी सारे इधर मीडिया पर भी हैं। इनमें अक्सरियत जो है ना, वो खामोशी से अलग हो जाते हैं। और उसमें अब पहले तो खामोशी से अलग होते थे, ये बताते भी नहीं थे कि हम मुसलमान हो गए, बल्कि जमात से गायब हो जाते थे। कादियानियों को इस बात का बड़ी खूबी से इल्म है। ना चंदा देते थे, ना ताल्लुक रखते थे, ईद पर भी कभी कभी आते थे, फिर वो भी बंद। लेकिन अब जो कादियानी है ना, उनको पता लग गया है कि कादियानियत छोड़ना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि कलमा पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है मुसलमान होने के लिए। तो वो हमें आकर कहते हैं कि जी हमें कलमा पढ़वा दें और बस इतना कर दें हमारे साथ। और फिर उनके दिल में कुछ सवाल होते हैं, वो पूछते हैं। नाम अपना नहीं कभी बताते, कोई बताते हैं। तो इस तरह से मैंने अब एक रजिस्टर खोला हुआ है, वहाँ पर मैं वो जो भी बताते हैं वो मैं लिख लेता हूँ। मतलब उनके नाम पता नहीं लिखता, वो तो गलत बात होगी ना। मतलब कि एक रफ अंदाज़ा करने के लिए कि कितने लोग हैं। तो मैं तो उन्हें खुद कहता हूँ कि आप जब तक आपका पूरा ख़ानदान कादियानियत की लानत से ना निकल जाए, आप खामोश रहें लेकिन मुसलमान रहें। और बस ये उसका खुद को फर्क, पोशीदा कर लेते हैं ना। हाँ नहीं देखें, ये उन पर आप देखें, ये तो मुजरिमों का ग्रोह है ना, लानती मुजरिम है ना ये। फिर अगर सगीर चौधरी साहब जो है, ऐसे चौधरी, उन्होंने ऐलान कर दिया, इनके खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने क्या, मैं तानू ख़त्म करके कर जावांगा। मैंने कहा कि चौधरी साहब ना इस तरह दियां गल्लां करो, ਤੁਸੀਂ नहीं ख़त्म करन लगे उन्होंने। तो खैर वो मायूस हो गए फिर के ये तो रोज़ फिर आ जाते हैं। बात ये है कि मैं आपको सबूत देता हूँ, इसलिए कादियानी कहते हैं ये एक्स कादियानी। 1998 में अप्रैल के महीने में मिर्ज़ा ताहिर का एक लानती सा खुतबा है, जिसमें वो अपना बजट बता रहा है। कह रहा है जी इस साल हमारी आमदनी 98 मिलियन डॉलर दुनिया से हुई है, और मैं दुनिया का अमीर तरीन आदमी हूँ। उसको पैसे गिनने का बड़ा शौक था, वैसे खासा लानती कंजूस था, सिर्फ शराब पर पैसा खर्च करता था, विस्की शिस्की पीने में आम पैसा बहा देता था। तो उसने कहा कि, और उस वक्त इनकी तादाद 1 मिलियन के करीब थी खलीफा ग्रोह की, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इनके चंदे से ये लगता है। 2022 में मुझे इनके एक बड़े सीनियर मुरब्बी ने, जो इनका इंचार्ज भी है, अपना तजनीद और चंदे का कंप्यूटर दिखाया। मैंने 3 घंटे तक उसको देखा, और वहां पर इनका टोटल दुनिया का चंदा सिर्फ 28 मिलियन डॉलर था। 98 मिलियन से 28 मिलियन। आप देखें, अगर 98 मिलियन 1 मिलियन मुर्तद देते थे तो 28 के हिसाब से तो इनकी 60% ख़त्म हो गई। ये तो 4 मिलियन से भी कम हो गए। फिर मैंने इनका तजनीद का कंप्यूटर देखा। खलीफा ग्रोह के जो लोग हैं, जो अपने आप को कादियानी कहते हैं, 2,80,000 से भी कम है, और दावा ये है कि हम 26 करोड़ हैं। आखिरी दावा ये नजर आया 26 करोड़। और ये जो गधा है ना, इसको तो भूल भी जाता है। इसकी मेरे पास तहरीरें बयान है। कभी कहता है जी हम तो 10 मिलियन है, यानी 1 करोड़ है। कभी कहता है हम 15 करोड़ है। कभी कहता है हम 1 करोड़ भी नहीं है। अच्छा ये डॉक्टर साहब, जी मैं एक बात यहाँ पे करूँगा। मैं परसों एक वीडियो देख रहा था, पूरे 1.5 घंटे की वीडियो। एक काला था जो कि मिर्ज़ा मुर्तद की मड़ी पे गया, उन्होंने पूरे 1.5 घंटे की डॉक्यूमेंट्री बनाई पूरे कादियान की। डॉक्टर साहब, मैं कसम उठा के कहता हूँ कि उस 1.5 घंटे की
डॉक्यूमेंट्री वीडियो पे मैंने उन 2 आदमियों के अलावा और जो बाहर 2 सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे उनके अलावा मैंने तीसरा बंदा कोई नहीं देखा वहां पे। मुझे पता है उस वीडियो का, उसमें एक मुरब्बी है जो हाँ लानती जी, झूठ बोल रहा है हाँ कब्र पर जी, मिर्जे की खड़ा होके। हाँ जी। हाँ और जी। डॉक्टर साहब मेरा सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि आप कहते हैं कि हमारी मिलियंस फैन फॉलोइंग हो चुकी है मिर्जे की, यार तो वो होते जिन कादियानी होए ने ना यार की गल करते पे हो। जो नजर नहीं आते। हाँ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ बुरा भला करते हो। नहीं सीरियसली डॉक्टर अच्छा साहब मैंने जब पूरी डॉक्यूमेंट्री देखी मैं शॉक हो गया कि ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਮਰਜ਼ਈਓ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੜੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾਹੁ शायद भाई अकबर। अभी मैं चलता हूँ, आप सैम इमरान भाई को रिप्लाई कर लेना, ठीक है? मैं डेफिनेटली करूंगा जरा, नहीं डेफिनेटली वो आपने ताज़ा खबर नहीं सुनी? नहीं डॉक्टर वो साहब। कादियान में जहाँ पर हज होता है, मिर्जइयों का हज कादियान में होता है ना, क्योंकि मिर्जा ने लिखा है कि यहाँ पर जलसा सालाना में आने का सवाब हज से ज्यादा है। कहता है वो मक्का मुकरमा का हज तो मदीना मक्का की नाउसबिल्ला छातियों का दूध खुश्क हो चुका है। अब हज जो है कादियान में होगा, और मरज़इयों को ये बताते भी नहीं है, क्योंकि मरज़ई को गोली दी हुई है ना कि हमारा हज भी वही, ज़कात भी वही, सब कुछ भी वही है। तो उसको बताया करो भाई कादियानी को। मिर्जा मुर्तद लिख कर गया है कोई कादियानी जिसने पूछना हो कि सबूत दिखाओ, तो हम आओ सबूत दिखाते हैं, अभी अभी लगा देंगे। उनका जो इस साल हज हुआ मिर्ज़इयों का कादियान में, वहां पर इनके मुताबिक 1600 आदमी आए। कितने में से? 9 करोड़ जो इंडिया में रहते हैं, 9 करोड़। उनमें से कादियानियों का अपना बयान है कि 1600 आ गए। यार लानती कादियानियों, कुत्ते हो, वो ताड़ा ते हज सी, वो तुम अपना हज भी नहीं करते। अच्छा डॉक्टर वो साहब, मैंने इनकी एक मूवी देखी है, ये वेस्टर्न मीडिया ने बनाई है, तो अचानक ही मैं मतलब फ्लिप कर रहा था ना, वो कभी होते हैं ना ऑफिस से आके जॉब से ना, तो इसीलिए मैं बेटे को ईसा को चला रहा था, तो मैं थोड़ा फ्लिप कर रहा था, तो मैंने कहा इन्होंने तो मूवी बनाई है इस लानती खंजीर जाल कज़ाब के ऊपर। आपने पता किस नहीं पर? देखी मिर्जे होगी। कादियानी पर? जी उसका नाम है नॉस्फेराती है। मैं लिखता हूँ नीचे। नहीं अच्छा नहीं, बहुत सारी मूवीज हैं, आपको तो नॉस्फेरा, ये देखे ना, मैं नीचे लिखता हूँ, ये जर्मनी में बनी हुई है। हाँ वो तो आप भी बनाते रहते हैं। उसका सॉरी, अच्छा ये नोटरी मैंने लिखा हुआ है, लेकिन मैं एक नहीं सेकंड नहीं, में मेरे पास तो बहुत सारी हैं, आप तो एक। नहीं दानी नु म्यूट ना करो, एक सेकंड। एस के सनी शायद साहब वैसे एक बात पूछे मरज़इयों से। हाँ मरज़ई कहते ने कि सैयद होली स्पिरिट साबिक कादियानी है। उन्होंने पूछा यार वजह की हुई कि ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ नहीं कादियानियत डॉक्टर क्यों साहब, छੱਡਤੀ? डॉक्टर साहब जो भी नहीं मैं नहीं, बात पूछो करने तो लगा हूँ सही ना, ना। मतलब कोई कादियानी बताया भी ये जो सैयद होली स्पिरिट ने कादियानियत छुप पर लानत भेज दी। नहीं बात तो ठीक है ना, अगर एक सेकंड के लिए तो सब मान लिया जाए, तो वजह तो दसो ना, वो सैयद होली स्पिरिट ने क्यों लानत भेजी ताड़े ते? अच्छा डॉक्टर साहब मैं इससे एक सवाल पूछने लगा दानी से। ये इसने लिखा है कि हम स्पेशल जो है वो जाते हैं जनाब हज करने के लिए मक्का और मदीना। दानी अब तूने ये सवाल मेरे का जवाब देना है जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ज़रा इसको गौर से देखना। अगर ये कुफरियाना कलमात हैं तो फिर इस पे लानत डालो कि ये हमारा जलसा सालाना एक किस्म का ज़िली हज है, खुतबात जुम्मा। ये तुम्हारी अल फजल का अखबार है, सामने ये इतनी बड़ी इबारत कुफरियाना लिखी हुई है। अगर ये जिसने भी लिखी उस शख्स पे लानत डालो। चलो चलो देख लो, देख लिया, चलो जी। डॉक्टर साहब पाँव पे जवाब देंगे इनको, पाँव पे इनका हाँ कुफर नहीं नहीं, बनाएंगे। देखें एक बात उन्होंने सही कही है। ये जो अपने अकायद है ना कादियानी, ये आम कादियानी को नहीं बताते हैं। ये भी बड़ी ही अजीब हैरत अंगेज बात है। उनको कभी नहीं इन्होंने कहा कि मिर्जे का खुदाई का दावा है। उन्हें अच्छा कभी डॉक्टर नहीं साहब कहा कि इनके मिर्जे ने कभी रोजा नहीं रखा। उन्हें डॉक्टर साहब कभी नहीं मैं बताया मिर्जे ने कभी नमाज नहीं पढ़ाई।
मिर्ज़ाइयों को कभी इन्होंने नहीं बताया कि मिर्ज़े ने ज़िंदगी भर जुमे का खुतबा नहीं दिया। मिर्ज़ाइयों को कभी इन्होंने नहीं बताया कि मिर्ज़े ने ज़िंदगी भर ज़कात नहीं दी। मिर्ज़ाइयों को कभी इन्होंने नहीं बताया कि मिर्ज़े ने ज़िंदगी भर हज नहीं किया। मिर्ज़ाइयों को तो ये बातें इल्म, वो तो उनकी आंखें फट जाती हैं कि ये हम जिसको नबी बना। और जब उनको, अब मैं बताता हूँ कि ये जो खलीफा ग्रोह है और ये जो सारे मिर्ज़ाई हैं, मिर्ज़े को झूठा कहते हैं। नहीं, एक तो उस लानती ने कुछ किया नहीं है, भी वो लानती ज़िंदीक था, ऊपर से ये उसको झूठा। वो लिख मर गया, मैं 1840-41 पैदा होया, 1840 में। कहते नहीं लानती है, तू तो 1835 पैदा होया। और भाई वो नबी मानते हो, वो झूठ बोलता है, सच बोलता है, जो कुछ करता है, तुम उसकी बात तो मानो। वो बार बार लिख कर दे गया, तुम मान लो उसकी बात। झूठी है, सच्ची है, हम भी कहते हैं झूठा है, फ्राडी है, लानती है, खबीस नस्ल है। और वो इसलिए नहीं मानते, 1840 कहते ही मिर्जे का बाप गुलाम मुर्तजा गायब हो जाता है ढुम करके, फिर पता ही नहीं लगता ओदा प्यो कौन है? अच्छा, नीचे मिर्जा लिखा है हरामदा हो डॉक्टर जाता सर्टिफाइड। साहब डॉक्टर साहब मैंने ये कुफरियाना कलमात इसको सुनाई और आगे से इसने जवाब दिया जिल्ली है। ये हालत है इन बेशर्मों नहीं नहीं की। नहीं, कहने दें उसको जिल्ली। देखें बात जिल्ली ये है मैं फिर कि थोड़ा जिल्ली इस्लाम बरूजी नहीं, बहनोई उसको है। ठीक आप बात बताए ना कि इस्लाम में जिल और बरूज का तस्वर ही नहीं है। जो शख्स इस्लाम में जिल और बरूज का लफ्ज इस्तेमाल करता है इस्लाम के अहकाम के बारे में, वो काफिर, मुर्तद और दायरा इस्लाम से खारिज है। क्योंकि काफिर की डेफिनेशन ये है कि वो शख्स जो कुरान और सुन्नत के एक भी हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है या तावील करता है, वो काफिर हो जाता है। इनकार करना, सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी में सिर्फ ज़कात का इनकार किया, आपने उनको काफिर करार दिया, उनके खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। बेशक। तो जब ये लफ्ज जिल्ली का इस्तेमाल करता है मिर्ज़ाई, तो वो काफिर मुर्तद हो जाता है। पहले है तो काफिर मुर्तद, लेकिन अगर ना भी हो तो जिल्ली का लफ्ज बोलते ही। इसका जवाब है जी, कौमी असम्बली की कार्रवाई में जिल और बरूज के बारे में 1899 सफ़े पर डिस्कशन मौजूद है। उलमा इस्लाम कौमी असम्बली के मेंबरान के सवालों का जवाब दे रहे हैं। जिल और बरूज का तस्वर मैं कादियानियों तुम्हें बता देता हूँ, मिर्ज़े कादियानी मुर्तद ने कहाँ से लिया। जहां से उसने लिया है वहीं से तो उसका ताल्लुक बनता है ना, उसने वहां से कॉपी किया है ना। ये लिखा है ऋग्वेदा में, मंडाला नंबर 8 पढ़ लो। चैप्टर को मंडाला कहते हैं, आयत को श्लोक कहते हैं। तुम भी पढ़ो, मैंने भी पढ़ी हुई है ऋग्वेदा। ऋग्वेदा दुनिया की वाहिद किताब है जो मजहबी किताब मानी जाती है, और हिंदुस्तान के अक्सरियत हिंदू है मिर्ज़ाइयों, जिनको तुम अपना घर देकर आए हो। वो है जिल और बरूज का तस्वर उनके मजहब का हिस्सा है, इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है। जिस वक्त तुम जिल्ली और बरूजी कहते हो, तुम काफिर और मुर्तद हो जाते हो, अगर नहीं भी हो थे। लेकिन मिर्ज़ाई तो वैसे ही काफिर और मुर्तद है, उसको क्या फर्क पड़ता है। अब इसका भी वो जवाब तो कुछ लिखा होगा वो जिसका आप कह रहे हैं। Yep. हुण नहीं, ਇਹਦਾ जवाब नहीं लिखा। अच्छा जी। अब नीचे कई लोगों ने कॉल डाली है, जो मिर्जे पे लाना डालेगा वही कॉल पे आएगा प्लीज, बिकॉज डॉक्टर साहब बैठे हुए, तो इसलिए मैं किसी अननोन बंदे को नहीं कॉल पे लूंगा। अगर कोई मुसलमान है तो मिर्जे के पे लाना डाले, फिर मैं कॉल पे लेता हूँ। शाह साहब है मिर्ज़ाइयां नू पैगाम भेजो कि होली स्पिरिट ने ताड़ी जमात क्यों छड़ी। नहीं बताएं, रोज आके कोई ना कोई कहता है कि एक्स कादियानी। मैं लानत भेजता हूँ, मेरे खानदान में आज तक कादियानी पैदा होना तो दूर की बात है, हमारे यहाँ कादियानी को साया भी पड़ जाए तो उस जगह को धोते हैं। अच्छा जी, ये यूजर साहब कौन है जी? हाँ जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका सवाल है, लानत भेजनी है, फिर अगली बात करनी, यही है। मैं मुसलमान हूँ, सुन्नी हूँ, ठीक है।
इस्लाम में कहीं पर भी नहीं लिखा कि कोई बुरा है तो उस पर लानत भेजो। हाँ, एक मिनट, अब इसको आप सुने जवाब। और गाली ना सूर बोले नहीं नहीं, एक मिनट। मुर्तद के बारे में जब कुरान पाक में जिक्र है तो अल्लाह ताला का हुक्म है, उलाइका जज़ाओहुम अन्ना अलैहिम लानतल्लाहि वल मलाइकाति वन नासि अजमईन, कि ये लोग हैं, इनका बदला ये है, इन पर लानत है अल्लाह की, फरिश्तों की, इंसानों की, सब की। मेरा रब मेरे बिहाफ पर लानत भेज रहा है, मैं क्यों ना भेजूं। आगे सुने, सूरा बकरा में लिखा है, इन्नल्लज़ीना कफरू, वो लोग जिन्होंने कुफर किया मर्ज़इयों की तरह, व मातू, और मर गए, व हुम कुफ़ारुन, और मरते हुए भी काफिर थे, अन्ना अलैहिम लानतल्लाहि वल मलाइकाति वन नासि अजमईन, उनकी लाशों पर भी अल्लाह कहता है अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, इंसानों की लानत, सब की लानत। आप कहते हैं कहाँ लिखा है? यार आप कैसे हैं? चले मेरी बात सुन लें। अभी अच्छा सऊदिया डॉक्टर ने साहब, यूजर साहब, वन सेकंड। लानत का आप मतलब तो आपको खुदा, पता है? नहीं नहीं, एक मिनट नहीं डॉक्टर साहब, मैं इसको शाह बताता साहब, हूँ ना। जब मेरा अल्लाह मेरा नाम लेके मैं नास में शामिल हूँ, कहता है कि तेरे बिहाफ पर मैंने इन लोगों पर लानत भेजी, और मैं लानत ना भेजूं, मैं तो नाफरमान हो गया। सर अच्छा, इसके अलावा कत्ल करने मैं, की मेरा क्या वजह पैगाम बताइए। सुने, मर्ज़इयों पर लानत बेशुमार लगातार था, जितने कायनात में जर्रे उतने जर्रों से ज़रब दे के मिर्जा कादियानी और उसकी मानने वाले पर लानत। अच्छा, अब मेरा सवाल है यूजर साहब, वन सेकंड। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कहते हैं कि लानत नहीं डालनी चाहिए, ठीक है जी। अब मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने एक अपनी पूरी की पूरी किताब में 1000 दफा लानत लिखा, ये सही। समझ आई मेरी बात की? जी जी बोले बोले आपकी आवाज नहीं आ रही। बोले भाई भाई बोले प्लीज किचन में। सुन रहा हूँ क्या बोले? आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। कोई नहीं शायद साहब आवाज आ रही है, उनकी भी आ रही है, आप बात करें। आवाज आ रही है। जी जी आप बोले। एक सेकंड भाई आप बोलते जाए। बोल रहे हैं साहब, अब वो मेरे ख्याल से माइक ठीक कर रहे हैं। नहीं, अभी ठीक हो गया। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने 1000 दफा लानत लिखी है, लानत 1, लानत 2, लानत 3, तो लानत का मतलब क्या है? चले अभी आप पहले भाई ने फरमाया कि जी कुरान में लिखा हुआ है, मैं मानता हूँ लिखा होगा, ठीक है। अगर कुरान ने लानत डाल दी बस बात खत्म होगी। उसके बाद कोशिश करें कि वो इस्लाम के दायरे में वापस आ जाए। आप उन्हें माओ बहनों की गालियां निकालेंगे, आप उन्हें शराब की जगह पे पेशाब पिलाएंगे तो वो मुसलमान होंगे? वो तो और बदजान हो जाएंगे। अच्छा, तो कौन गालियां दे रहा है? वो सर ओवरऑल ये जितनी डिबेट चलती है जहाँ पे जो कुछ होता है यहाँ पे मुझे वन सेकंड, यहाँ पे मुझे 2 घंटे 24 मिनट हो गए बैठे हुए, 34 मिनट। किसी एक शख्स ने भी माँ सवाए लानत के उन पे कुछ नहीं बोला। आप सुनते जाए ना। जी। अब ये वीडियो सुने, लानत का मर्ज़इयों के मतलब अकीदा क्या है, लानत क्या है। मिर्जा साहब ने अपनी एक तहरीर में 1000 मरतबा लानत भेजी और फिर इसी पे बस नहीं किया कि 1000 मरतबा, बल्कि 1000 मरतबा लानत का लफ्ज़ लिखा और कई सफ़े उससे भरे। तो ये एक एतराज़ जो है, इसका जवाब आपसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि लानत गाली नहीं है, लानत दुआ है। जब अल्लाह ताला किसी पे लानत करता है, लानत का मतलब है खुदा की कुर्बत, खुदा की मदद और खुदा की मोहब्बत। फरिश्तों का और इंसानों का किसी इंसान पे लानत करना वो दुआ की हैसियत है। जी, फरिश्तों का और इंसानों का लानत करना एक दुआ की हैसियत है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये मर्ज़इयों का सबसे मुरब्बी कह रहा है। तो अच्छा, आप उनकी बात मान रहे हैं? आप उनकी बात मान रहे हैं? मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। भाई मेरा हम उन पे लानत करते हैं, जब हम उन पे लानत करते हैं तो वो कहते हैं ये दुआ है। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਨਤ ਭੇਜੀ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕਰੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਸਲਾਮ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਾਰੇ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਜ਼ਨਾ ਕਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਟੇ ਮਾਰੋ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਟੇ ਮਾਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਤਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲਾ ਦੋ ਦੀ ਗਰਦਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਮਰਦਾਈ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਅਗਲੇ दिन ही यार, की गल कर रहे हो? नहीं, मेरी गल सुनो ना। निदा और नसर की बात नहीं आपने सुनी? मिर्जे खानदान की औरत, मिर्जे ताहिर की नवासी, मिर्जे नासिर की पोती कह रही है कि मेरे से बाप ने जना किया। वो 36 सर साल। बात सुन लेना, आप कह रहे हैं ना उसने किया बाप के, तो निकाल लें उसको, बाप मरे बाप। नहीं 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 नहीं, नहीं सुने सुने सुने, अभी बात नहीं खत्म हुई ना। जी जी, बाप ने किया, नाने ने किया, दादे ने किया, भाई ने किया, मामे ने किया, चाचे ने किया। आपने मान कहती लिया? है नहीं, सुने सुने, जिसने शक्ल देखी किया। और मिर्जे खानदान की और मिर्जइयों की सारी लड़कियां ऐसी हैं। वो सर बात सुने, सारे माओ बहन वाले हैं, ठीक है। आप नहीं इसकी नहीं, बातें नहीं- कादियानियों में जब उनका खलीफा के खानदान का किरदार ये है तो वो तो फॉलो नहीं करेंगे। यार क्या बात करते हैं आप? कोई अकल का इस्तेमाल करें। देखें, आप अब मुझे अक्ल ना सिखाएं, मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, एक्सट्रीम पे नहीं जाते, ठीक है। कल ये बातें हम शियों के बारे में करते थे, ठीक है। नहीं कौन नहीं, इधर करता था? मसलक की बात नहीं करनी, सर मसले एक ही की बात पर कहने, एक हम बात लोग पर बहुत कहने। बातें करते थे शाम गरीबा पे, क्या नहीं नहीं, बिल्कुल गलत, हम नहीं कभी करते। सर, हम कादियानियत की बात कर रहे हैं। ये चूरन यहाँ नहीं बिकेगा हाँ, और ना ही मैं बेचने दूंगा। अब वो आपने जाए। गाली की बात की ना, वो गाली तो सुन ले ना, गाली तो सुन ले। गाली किन्ने दिती है, मैं तेन दसना किन्ने दिती है। रूहानी हज़ाइन, शैतानी हज़ाइन जिसको बोलते हैं, शैतानी हज़ाइन जिल्द नंबर 23 सफ़ा नंबर 244, चश्मा मार्फत, ठीक है। सॉरी 1 सेक, कितने गया जी, क्योंकि अब आपने सवाल किया कि गालीबाज सबसे बड़ा गालीबाज कौन है, मैं साबित करूंगा, ठीक है। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कहता है कि जो हमारी फतह का कायल नहीं होगा तो साफ समझ जाएगा उसको वल्दुल हराम बनने का शौक है, वो हलाल ज़्यादा नहीं। आप मुसलमान हो हैं? बोले यूजर भाई, मुसलमान है आप? जी यूजर भाई, जी यूजर भाई, साहब, बोले तुसी मुसलमान हो? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਪੁੱਛੋ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਜਾਣਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣੋ ਤੇ ਨਾ ਖੁਦਾ ਬਣੋ। ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਪੜਦਾ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। अच्छा हाँ, सुनना नहीं, वो मरता ही है। दूसरा कादियानी नहीं हूँ, डॉक्टर साहब, मैं नहीं इसका मानता, लेवल ठीक है, आपके मिर्ज़ा आपके जैसा कादियानी नहीं है। नहीं मानता। अच्छा, मैं नबी पाक आपने पे हमें गालीबाज कहा। अब मैं बताता हूँ गालीबाज कौन है। अगर आप मुसलमान हो, मिर्ज़े कादियानी पे लानत डालते हो, उसको नहीं मानते, वो आपको कह रहा है कि तुमने अगर मुझे नहीं माना तो तुम वल्दुज़ ज़ना हो, हैं? वो कह रहा है। कहने ना, अच्छा ਉਹਦੇ ਕਹਿਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਰ ਲੋਕ। अच्छा, दूसरी बाल, अब देखना चाहिए कि वो कंजर है दे यार, तेनू थोड़ा जिहा ना मैं आईना दिखावा, ठीक है, ऐ देख। अब देखना चाहिए कि वो कंजर जो वल्दुल ज़ना कहलाते हैं वो भी झूठ बोलने से सच बोलने से शर्माते हैं। हुण दस किहड़ा वड्डा गालीबाज है? मिर्ज़ा गुलाम कादियानी असी हैं? भाई ते मैं तेनू कुछ दिखाया ही नहीं है। ਕੁੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ। ਲੈਟ ਹਿਮ ਸੇ ਵਾਟ ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਸੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। What we trying to say, what we trying to do, what our Islam's Just give give me it to 1 us. sec, I'll Yeah. come back. Give me 1 second if you don't mind. Yeah, I'll come. No problem. You can go and come back. No problem. When you're free, come again, okay? तुम सब गलत हो। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਉਹ 1379 ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਭੇਜ ਦੋ। नहीं डॉक्टर साहब, इनू गाला सुनासा फिर कहेगा कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी। देखो किड्डी लिखिया है कि ए बेबाक लोगो ए बेबाक लोगो झूठ बोलना और गूं खाना। नहीं वो तो ठीक है। हाँ, बात ये है, ज़ुर्रियतुल बगाया। नहीं, एक बात ये है कि जो शख्स कुरान पाक की नाफरमानी कर रहा है, मेरा अल्लाह कहता है कि कादियानियों और उन जैसों पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, इंसानों की लानत, सब की लानत। इसीलिए तो उसने उसकी डेफिनेशन बदल दी लानत की। उसे पता है कुरान में लिखा, अल्लाह ने लानत भेजी है। और जो शख्स कुरान का नाफरमान बनता है और लानत नहीं भेजता, वो तो मुसलमान है ही नहीं है, वो तो काफिर और मुर्तद हो गया। सीधा फतवा है उसके बारे में।
آپ قرآن کے ایک حکم کی، یہ اللہ کا حکم ہے کہ میں اور آپ قادیانیوں اور ان جیسوں پر لعنت بھیجیں اور ہر وقت بھیجیں۔ بے شک جو شخص اس کا انکار کرتا ہے وہ تو کافر، مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آپ نے صرف اسلام کے اور خاص طور پر قرآن اور سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی نافرمانی کرنی ہے، آپ کافر ہو جائیں گے۔ اور یہ تو واضح حکم ہے، بار بار قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اے انسانوں، مرتدین پر لعنت بھیجو، کافروں پر لعنت بھیجو۔ بے شک میں کیوں نہ بھیجوں یار؟ مرزے قادیانیت پر جتنے کائنات میں ذرے، ان کو اتنے سے ہی ضرب دے کر لعنت بے شمار، لگاتار، تیز رفتار، مرزے اور اس کے ماننے والے ہر شخص پر۔ فلم لگاتا ہوں میں۔ اچھا جی، یہ آیا احمد صاحب آئے ہیں کوئی؟ جی احمد صاحب، احمد ساگر شیخ صاحب۔ یار بڑی دیر سے آپ لوگ سینئر لوگ گفتگو سن رہا ہوں آپ لوگوں کی۔ میرے پاس سوال تو نہیں ہے کوئی بھی، لیکن کچھ ایسی بورڈس چل رہی ہیں، ہمارے جو یہاں پر سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ٹک ٹاک پر ایسی بروڈس چل رہی ہیں، ایسی گھٹیا بروڈس چل رہی ہیں، ان پہ جا کر آپ لوگ یار وہاں پر جا کے ڈیفینڈ کرو نا۔ وہاں پر میرے جیسا بے علم بندہ نا بے بس ہو جاتا ہے، جیسے کوئی تو یہ آپ ان کو رپورٹ کریں اور بلاک کریں میری جان دے ٹوٹے۔ ضروری نہیں ہے کہ جہاں پر اس طرح کے کنجرخانے لگتے ہیں ان کا حصہ بنے، ٹھیک ہے؟ نیچے یہ دیکھیں کیسے یہ دانی لکھ رہا ہے کہ ہمت ہے تو پھر اوپر آؤ نا۔ اپنے گھروں میں وہ کی کہنے نے اپنے گھر کتا بھی شیر ہوندا ہے، ٹھیک ہے؟ مرزائیوں کو میں نے اتنا دیا ہوا ہے فری ہینڈ کہ یہاں پر آ کر نہ آپ سے کوئی سوال ہوگا، نہ کوئی ہم آپ سے سوال پوچھیں گے، صرف اور صرف ان کی افیشیل ویب سائٹ سے مرزا غلام قادیانی کی کتاب پڑھ دیں، ٹھیک ہے؟ پھر پتہ جائے گا کہ مرزا کس ذہنیت کا آدمی تھا۔ یو انڈرسٹینڈ مائی فرینڈ؟ ایک بروڈ چلتی، سوری جناب والا، ایک بروڈ چلتی ہے، اس پہ یہ لوگ سیدھا توبہ نعوذ باللہ محمد مصطفیٰ اور ہماری جو پاک دامن عورتیں ہیں ان کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ میں نے تو دو تو پھر نہیں نہ جانا چاہیے، نہیں نہ دیکھو لسن میری جان دے ٹوٹے، اگر کوئی اس طرح کا چورن بیچ رہا ہے نا، تو اگر ان کے اوپر کوئی بندہ بھی نہیں جائے گا، وہ اپنی لائف بند کر دیں گے۔ ہم جیسے جو لوگ جائیں گے غصہ کھا کے، آئی ڈو انڈرسٹینڈ تیرے جذبات، میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن اگر ہم وہاں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ان کو ہم لوگ آکسیجن پرووائڈ کریں گے، وہ پھر اس سے زیادہ کریں گے۔ تو اس سے بہتر ہے ایگزیکٹلی، تو اس سے بہتر ہے کہ ایسی کوئی بھی براڈ آپ دیکھتے ہیں تو اس کو بلاک ماریں، رپورٹ ماریں، اپنا دینی فرائض ادا کریں، نہ کہ ان کے ساتھ انہوں نے تو گستاخی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان براڈوں کا حصہ نہیں بنے، ان جیسی براڈوں کا، جیسے ایک فرقہ واریت کی براڈ ہو گئی، وعلیکم السلام، فرقہ واریت کی براڈ ہو گئی، اور جس طرح سے یہ گستاخیاں کرتے ہیں تو ان کی براڈوں کا حصہ نہیں بنے۔ جی نقوی صاحب۔ سوری بھائی، صحیح بات ہے، ہمارے جانے سے ان کی بروڈ موو ہوتی ہے۔ ہاں صحیح بات ہے، سوری۔ تھینک یو جی نقوی صاحب، کوئی سوال؟ سر جی کوئی سوال نہیں، تھینک یو کرنا ہے کہ میں سنیا تو ایسے کہ بس یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، پر میں پتہ نہیں سی کہ لکھتے ہیں۔ آج میں تھوڑے کو آ کے بیٹھا ہوں، میں پتہ لگا کہ وہ کرتے ہیں کہ لکھتے ہیں۔ سر ایک چھوٹی سی میری ہمبل سی ریکویسٹ ہے، یہاں پہ 28 بندے سن رہے ہیں، جی بھائی، یہ اس کلٹ کو ختم کرنے کا جو مقصد ہے نا، وہ یہ ہے کہ جو آپ کو یہاں سے انفارمیشن ملتی ہے، پلیز پاکستان میں اپنے دوست، احباب اور رشتہ داروں کو اس چیز کے بارے میں بتائیں۔ جتنا ہم بتائیں گے اتنا ہی سوشل بائیکاٹ ہوگا پاکستان میں مرزائیوں کا۔ بھائی جان مجھے یقین کریں نہیں پتا تھا کہ وہ اتنا گندے بکواس کرتے ہیں اور اتنی گندی باتیں لکھتے ہیں۔ میں نے یہ سنا تھا کہ وہ غلط ہے، مسلمان نہیں ہیں، وہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، پر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اتنا بڑا کنجر خانہ کرتے ہیں۔ یہ تو آپ نے بتایا ہے، کتاب سے دکھایا ہے۔ بہت بکواس۔ ڈاکٹر صاحب ذرا مرزا قادیانی کے بارے میں نا ان کو بتا دیں کہ اس کے دعویٰ جات کیا ہیں، کیونکہ پاکستانیوں کو یہی پتہ ہے کہ اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ بتا نہیں۔ جی یار ایک یہ بتانا، اور دوسرا اس کی ڈیتھ کے بارے میں بتانا، میں ضرور سننا چاہوں گا یار۔ شاہد صاحب آپ بتائیں نا ڈیتھ کے بارے میں، پڑھ دیں انہیں، وہ انہوں نے جو خود لکھا ہوا ہے۔ چلے میں وہ بتا دیتا ہوں۔ اور ٹوائلٹ کے اندر مر گیا تھا، اس کو کوئی پیشاب کی تکلیف ہو گئی تھی تو ٹوائلٹ کے اندر مر گیا تھا،
घूमे रहता पता था। मैं आपको दिखाता हूँ। और एक और बात प्लीज़ मेरी याद रखिएगा कि ये दुनिया का वाहिद वो ज़ंदीक शख्स है, क्योंकि जितने भी लोगों ने नबूवत का झूठा दावा किया उन्होंने सिर्फ नबी होने का दावा किया, ठीक है। ये इतना ज़ंदीक और ज़नीम शख्स है कि इसने आकाए दो जहान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हातमुन नबीन का रीबोर्न होने का दावा किया, ठीक है। मैं आपको एक इबारत इसकी सुनाता हूँ, आप ये देख लें। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, राइट। और ये मैं कोई अपने से नहीं कह रहा, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, alkanjarhana.com, ठीक है। यहाँ से ये किताबें हैं सारी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की। यहाँ पे एक किताब है, उसका नाम है एक गलती का अज़ाला। मैं अक्सर लोगों को यही बताता हूँ ताकि इनके दजल का पता चले कि ये लोग मिर्ज़े पे दुनिया भर से लानते क्यों पड़ती हैं। ये वो चीज़ें हैं, पढ़नी चाहिए सर। ठीक है। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने हर पैगंबर की बेहुरमती की है, हर नबी की बेहुरमती की है, यहाँ तक कि उसने अल्लाह पाक की बेहुरमती की है, ठीक है। ये देखें जी, ये एक गलती का अज़ाला है। यहाँ पे तो सिर्फ उसने कहा है कि एक साहब पर एक मुखालिफ की तरफ से ये इतराज़ पेश हुआ जिससे तुमने बैत की है वो नबी और रसूल होने का दावा करता है, और इसका जवाब महज इनकार के लफ्ज़ से दिया गया, हालांकि ऐसा जवाब सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप नीचे जाएंगे ना तो यहाँ पे ये लिखता है कि इस आजिज़ को रसूल करके पुकारा गया। फिर इसके बाद इसी किताब में मेरी निस्बत वही अल्लाह यानी खुदा का रसूल नबियों के हलूल में देखो। आगे ये नीचे से थोड़ा आएंगे तो यहाँ पे ये क्या कहता है, मगर एक खिड़की सीरत सदीकी की खुली है, यानी फना फिर रसूल। बस जो शख्स इस खिड़की की राह से खुदा के पास आता है उस पर नौज बिल्ला वही चादर। अहमद साहब प्लीज़ म्यूट लगा लें, अहमद साहब म्यूट लगा लें प्लीज़। वही नबूवत की चादर पहनाई जाती है जो नौज बिल्ला जो नबूवत मोहम्मदी की चादर है। अब यहाँ पे इसका आगे देखें, इसका नाम आसमान पर मोहम्मद और अहमद है। आगे चले जाएं, नीचे आगे ये कहता है गोया मोहर तोड़ने वाला नहीं होगा, हातमुन नबीन पर है। अगर कोई शख्स उसी हातमुन नबीन में ऐसा गुम हो कि बेबास नहायत नफ़ी और गैरत के इसी का नाम पा लिया हो, नौज़ बिल्ला, और साफ आईने की तरह मोहम्मदी का चेहरा उसमें नकास हो गया हो, तो वो बग़ैर मोहर तोड़ने के नबी कहलाएगा, नौज़ बिल्ला, क्योंकि वो मोहम्मद है गोया ज़िली तौर पर। यार ये हालत है, ये खुद पढ़ लें, है, क्योंकि वो मोहम्मद है गोया ज़िली तौर पर। ये गुस्ताही, ये क्या है, ये चीज़ें क्या हैं? मर्ज़ियो होश करो कुछ। ज़िली डॉक्टर साहब बता चुके हैं, ज़िल बरूज इस्लाम में नहीं है। सो अब ये हम मुसलमानों का फ़र्ज़ है कि इस कल्ट को किस तरह से ख़त्म करना है। शाहिद भाई ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸਲੀ ਅਕਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜ਼ਿੱਲੀ ਹੀ ਕਰ ਲੋ। हद होंदी है यार बेहिसी दी भी। लो जी थले लिख रहे हैं ये गुस्ताखी नहीं है। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੱਲੀ ਬਰੂਜ਼ੀ ਬਹਿਨੋਈ ਮੰਨ ਲਵੋ। ये गुस्ताखी नहीं है तो मैं भी कोई गुस्ताखी नहीं की थी। फिर ए भी गुस्ताखी नहीं है, फिर बिल्कुल गुस्ताखी नहीं है। तो मैं हकीकी तो नहीं ना, हकीकी तो नहीं ना बनया मैं दानी मैं हकीकी तो नहीं ना तेरा बहनोई बनया, जिली बरूदी बन लिया। जिन मिर्जा गुलाम कादियानी बनता सी पता मैं भी फिर तेरा जिली बरूदी मन, फिर मैं भी तेरा प्यो वा, पर चाहे जिली बरूदी मन ला। हद होंदी है बेहिसी दी भी यार। थैंक यू भाईजान, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और बिलीव करें सर, मुझे फर्स्ट टाइम पता चला है कि इतने बड़े बकवास लिखते रहे, लानत है इन पे और उनके मानने वालों पे और इनको डिफेंड करने वालों पे। ठीक है, क्योंकि मैं एक बंदे को सुनता हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता,
वो क्या नाम है उसका, बाकी बड़ी अच्छी बातें करता है, लेकिन उसने मिर्ज़ा के बारे में जब भी वो बात करता है तो वो कहता है जी कि नहीं उसने तो खाली नबी होने का दावा किया है, ये बाकी जो बाबे हैं वो उससे बढ़ के हैं। मिर्जा जेल में उन्होंने इंजीनियर सौदे की के बात हो रही है ये मिर्जा इंजीनियर की बात हो रही है। उसी की बात कर रहा हूँ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਚੜਿਆ ਜੇ ਪਤਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छा हाँ तो और की वो कहता मैं नबी है मान लो उन्हों चले जी मैं सुना देता हूँ आपको, हमारी अल्लाह बातों माफ पे करे यार, यकीन ना अल्लाह माने। उस पे भी लानत है फिर तो। अल्लाह माफ करे। ਸੁਣ ਲਓ ਜਾਂਦੇ ਆ जी भाई। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ लोकी ये हमें हक मिला है अल्लाह ताला की तरफ से ना, शुक्र ठीक है, कि हम अपने इस्लाम को डिफेंड करें। बेशक। आप गुंबद हजरा को क्या समझते हैं, वो आप उसको मानते हैं कि गुंबद हजरा जो है जो बनाया गया आका दो जहान, चले मैं पहले ये नबूवत का जो है ना ये सुन लें, ठहरे मैं इसको ऑन करूं क्योंकि मैंने यार ये तो बंदा बड़ा पढ़ा लिखा था, पता नहीं क्यों इसने इतने चवल मारी अगर किया है तो बस। उसने बीएससी कीती है और की कीता है नहीं वो लोग दीन की किताबें काफी बताता है ना वो लोगों को। कोई भी नहीं पढ़ी हुई उसने, उसके पास तो दीन का एक तिनका नहीं पढ़ा मेरे भाई उसने, वो तो उसने गढ़ा हुआ दीन है उसका अपना ही। वो हदीस बयान करता है उसमें तहरीफ करता है, कुरान बयान करता है तहरीफ करता है, नाउज़ बिल्लाह। तो उसको तो समझ भी नहीं लगती कि हदीस और कुरान में लिखा क्या हुआ है, वो उस पर अपनी अपनी वो घड़ के सुना देता है। वो तो कहता है कि औरतों को 4 शोहर मिलेंगे जन्नत में। आपने कौन से कुरान और हदीस में ये बात पढ़ी है? अच्छा जी ये सुनिए जरा। जी भाई। ये नबियों वाली जो अखलाक नबूवत है ना, अल्लाह ताला ने इसका कुछ हिस्सा मुझे दिया है। सुन लिया जी नबूवत, नबियों वाली जो हलाफे नबूवत है, हलाके नबूवत है, इसका कुछ हिस्सा नौज बिल्ला वैसे मैं अक्सर वो फेसबुक पे लगे होते हैं ना, मैं अक्सर सुनता रहता था इसको, लेकिन आज के बाद तो मैंने इसको नहीं सुनना भाई। अच्छा और सुने जरा इसके इल्मी लेवल चेक करें। अच्छा क्या हम लोग मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को डिफेंड नहीं कर सकते? क्यों करें सर, एक लानती को हम क्यों डिफेंड कर रहे हैं? तो ये देखें, ये कह रहा है कि तुम्हारे बड़े भी आ जाएं तो वो नहीं चेक कर सकते। देखिए अल्लाह ने जलील कर दिया इनको, अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने 3 महीने का टाइम दिया था कादियानियों को, अगर उन्होंने 3 दिन के अंदर सारे मौलवियों की वीडियोस रिकॉर्ड करवा के चढ़ा दिए। अच्छा जो तुम झूठ बोल रहे थे मेरे सामने तो बताओ इन लोगों का कोई लेवल है? मिर्ज़ाइयों का कोई मौलवी नहीं आता, और ये शख्स जो बोल रहा है ना, इसको मैंने ईमेल की थी, तुम काफिर मुर्तद और दायरा इस्लाम से खारिज हो, ये मेरे बारे में बात किया करता था अपनी वीडियो में। अच्छा हाँ जी, मैंने इसको बताया कि मैं तुम्हें काफिर मुर्तद और दायरा इस्लाम से खारिज समझता हूँ। चलो जी, इसको मैं वैसे बात बताऊँ, मैंने इसको काफी सुना है लेकिन मुझे नहीं पता था इस हद तक ये लानती है। नहीं ये तो बड़ा अपने आप को कहता है कि मुझे नबी मान लो। डॉक्टर साहब इसकी सबसे बड़ी गुस्ताखी सुने ये वाली। तो ये जो मेरी करामत, हालांकि मुझे तो नहीं पता था ये सारे स्टूडेंट्स बनने वाले हैं, ठीक है। जिस तरह नबी इस्लाम के वो 7 हाकचार यार थे ना, तो ये मेरे साथ हाकचार यार है। हाँ सुन लो जी, इस्लाम ये मिर्ज़े की तरह मिर्ज़े कादियानी की तरह ये अपने आप मुकाबल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर रहा है। कहता है मैं उनके भी हक 4 यार मेरे भी हक 4 यार, ये दावा है इसका। अल्लाह माफ करे जी, इसके मतलब पैने पागल हो गए। सॉरी भाई, लेकिन पैने बहुत गंदी, सॉरी मेरी जुबान से निकल रहा है, गालियां निकल रही हैं, लेकिन ये है कि ये सुनेंगे तो जो भी आका दो जहान से मोहब्बत करता है उसके मुंह से निकलेगा ये अल्फाज। वी कांट कंट्रोल आवरसेल्फ। देखिए अब लेकिन बहुत गंदी बात है सर ये इसको तो पैन ऐसे बहुत जीने के कोई हक नहीं है भाई। अब और सुने जरा, आपने सदियों से मुसलमानों से झूठ बोला है कि जी मुसलमान थोड़े थे तो काफिरों पर गालिब आ गए। वो इसलिए आए कि जब खालिद इब्न वलीद यहां से तलवार लेके निकले ना, तो रोमन जनरल ने भी तलवार ही उठाई हुई थी। अगर उसके हाथ में क्लाशनकोव या लेजर गाइडेड कोई गन होती तो हजरत खालिद इब्न वलीद तो अपनी फौज से पार भी नहीं निकल सकते थे। 2 किलोमीटर दूर से उसने शहादत तक पहुंचा देना था। हेलो जी, जो आज हो रहा है ओ देख, खाम ख्याली देखो, उसके पास होती तो खालिद बिन वलीद के पास उससे बड़ी गन होती। दुनिया के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास भी एटम बम है। बोलो किसी से कि चलाना है, अगर पाकिस्तान में मुर्तद
कादियानी नवाज या कादियानी ना हो तो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखना भी कोई शक आज वैसे की है। जिंदा दुनिया में और ये किसी लोग के सारे बड़ी बड़ी बस पोस्टों में में बैठे नहीं हुए है। हैं। जी, ये नकवी बात साहब है। कहता है कि खालिद बिन वलीद दुनिया का ताकतवर सिपह सलार, कैसे हो सकता है कि एक काफिर के पास लेजर गन होती और उनके पास ना होती? यार इतनी तो जहालत है इस आदमी में, क्या बात नहीं करते हैं? डॉक्टर साहब, यहाँ पे मेरा एक सवाल ये पैदा होता है कि जो इसराइल में फलस्तीनी लोग, बच्चे, ये चीज वो मरज़ई कादियानी भी कह के उसका भी मकसद ही यही था कि जहाद को खत्म किया जाए। इसका भी मकसद यही है कि जहाद को खत्म किया जाए। अब ये एक फलस्तीनी बच्चा जो गुलेल लेके फलस्तीनी पे चढ़ जाता है, उसके जज्बा ईमानी कोई नहीं है। हम ये सोच के डर जाएं जी, सर हम जी, चुप अगर रहें। गनों से ये बंदा जीतता ना जंग, तो कश्मीर में अभी